Good morning, student. This is a SAC portion. The topic of the book, Basic Analytical Chemistry. Let us discuss what is meant by analysis here. Whenever we want to analyze, we are in the lab and we analyze by doing some experiments. What we do in the experiments, we want to know that what is this? That is the first part of the analysis. Means it may be asked from you that something is given in the lab and you are asked, tell me that what is this? When you are going to tell about that what is this, means you are being asked about the name of that particular matter, name of particular material that is being given to you. Probably when we are in the chemistry, we are analyzing some chemicals. So you are being asked about the name of the chemical. But we don't put the word name here. We call it quality. We call it quality. Means whenever you are being asked about the name of the compound, what is this? You will say it is a sodium chloride. It means quality of that material that is being asked. Quality doesn't mean as is in the Hindi, yogyata or whatever it is. It is quality here. It is linked with the name or identification of that compound. So first part is what is this? That is, it is quality. And the analysis related with that is known as the qualitative analysis. Means asking simply about the qualitative analysis, you are only asked to tell about the name of the compound. You are only asked about the name of the element or anything else. So that is the particularly related with the name. Second aspect of the analysis, once you know it is benzamide, how much it is? Once you know it is acid, how much normal it is? Once you know it is a solution of potassium dichromate, what is the strength of the solution? Then you are asking about the quantity of that matter or quantity of that chemical. It means this type of analysis is termed as the quantitative analysis. So analysis, you investigate, you identify something, but identification is of the two types. What is this? That is the name of the compound, that is the qualitative one. And second one, when you are asking about the how much it is, quantity, that may be a strength, that may be a normality, molality or whatever it is being asked, mole fraction may be there. So that is the quantity and that analysis is the quantitative analysis. So generally there are two kinds of the analysis. One is qualitative, another is the quantitative analysis. So moving further, there are peculiar words. One word, it is precision. Another word is the accuracy. Everybody has seen now, but I am showing here it is precision and the accuracy. Now moving further, how much accurate I am in measuring something, how it can be said. सिंपल सा एग्जांपल है कि किसी चीज के बारे में मुझे पूछा गया है, अगर मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नॉन है तो मैंने जो वैल्यू मेजर की है मैं उसको कंपेयर कर सकता हूं एग्जैक्ट वैल्यू से एंड आई कैन टेल अबाउट द एक्यूरेसी, हाउ मच एक्यूरेट आई एम. फॉर एग्जांपल एक थर्मामीटर दे दिया और मुझे मालूम है कि रूम टेम्परेचर कितना है, एक स्टूडेंट के हाथ में दे दिया, हाँ जी इसको पढ़ो आप, तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नोन है, तो बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना एक्यूरेट पढ़ा उसमें से, तो एक्यूरेसी उससे जो वो निकाली जा सकती है. दैट इज ए वेरी सिंपल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर मीन्स थर्मामीटर, आपने देखा थर्मामीटर में एक ही तरह की रीडिंग होगी. until unless there is already an error that is present in the thermometer, everybody will say same reading. सबकी जो रीडिंग ऑलमोस्ट एक थर्मामीटर से जो इक्वल हो सकती है,
ये अलग हो सकता है कि अलग अलग थर्मामीटर दे दिए जाएं तो एक थर्मामीटर में वैल्यू अलग होगी, दूसरे में डिफर कर सकती है। दैट मे बी पॉसिबल, इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन। इतनी ज्यादा वेरिएशन तो नहीं होगी, लेकिन थोड़े बहुत वेरिएशन जो वो पॉसिबल है। अब बात आती है कि एक टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट लगा है। टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में आपने वॉल्यूम यूज्ड, एसिड बेस की टाइट्रेशन कर रहे हो, वॉल्यूम यूज आपने जो डिटरमिन करना है। नोबडी नोज व्हाट इज द एक्चुअल रीडिंग। जो ब्यूरेट से रीडिंग आती है 9 ml आएगी, 10 ml आएगी, 15 आएगी, 20 आएगी, नहीं मालूम है। दूसरा, मान लो किसी अर्थ क्रस्ट से जो कोई सैंपल आपने निकाला है, उसमें कितनी परसेंटेज है वो आपके डिटर्मिनेशन, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितनी है वो कभी भी नॉन नहीं होगी। दैट इज नॉट नोन। हाउ यू आर एबल टू टेल दैट दिस इज 10 सेंटीमीटर। आपके पास स्केल होता है, स्केल से आपने मेजर कर लिया और बता दिया कि हाँ जी 10 सेंटीमीटर है। क्या आपने जो स्केल यूज किया वो एग्जैक्ट डायमेंशंस का था? क्या उसमें जो मार्क्स प्रिंट थे वो एग्जैक्ट थे? इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में भी एरर हो सकती है। किसमें एरर हो सकती है? इंस्ट्रूमेंट में। समटाइम इट मे हैपन दैट देयर मे बी एरर इन द मेथड। जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो है वो एरर हो सकती है। जैसे मेथड किस तरह के हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल ग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस से भी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, फिर कलरीमीटर मेथड से भी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, फिर पोटेंशियोमीट्री से भी आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, फिर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से भी आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, सिंपल टाइट्रेशन से भी आप जो है वो स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि एक मेथड बहुत अच्छा हो, दूसरा मेथड जो हो वो इतना अच्छा ना हो। तो हर एक में जो वो एक ही सैंपल की जो रीडिंग है दैट विल वेरी फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट टू द अनदर एक्सपेरिमेंट। और इन द सिंपल सेंस whatever is the exact value, it is never known. Then comes, if exact value is not known, how much accurate I am, I can't tell. तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक एक्सेप्टेड वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक्सेप्टेड वैल्यू। कि जैसे आपके पास सामने एक सैंपल रख दिया जाए तो आप आसानी से उसको देख रहे हैं कि सर 5 या 6 सेंटीमीटर के करीब होगा। कितना हो सकता है? 5 और 6 सेंटीमीटर। बट डायमेंशंस कांट बी 100। उसी 6 सेंटीमीटर को आप 100 नहीं बोल सकते हैं। सो 6 से 6.6 इज एक्सेप्टेबल, 6 से 5.9 इज एक्सेप्टेबल, 6 से 5.5 इज एक्सेप्टेबल वैल्यू। बट इफ यू से 100 दैट इज नॉट द एक्सेप्टेबल वैल्यू। इट मीन्स कि जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें आपके पास एक्सेप्टेड वैल्यू होनी चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है कभी भी। एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू हो। इसीलिए कौन सी वैल्यू होती है? एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्सेप्टेड वैल्यू जो है वो आपकी मेजर्ड वैल्यू से कितना वेरी कर रही है उसको बोलते हैं हम एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं उसको? एक्यूरेसी। अगर 10 सेंटीमीटर का आपने 9 सेंटीमीटर पढ़ लिया या 9.9 पढ़ लिया, यू आर 99% श्योर और यू आर 99% एक्यूरेट। तो उन दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल टेल अबाउट द डिफरेंस ऑफ द एक्यूरेसी और डिफरेंस ऑफ द एरर। नो व्हाट आई एम सेइंग, क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्सेप्टेड वैल्यू इज द एक्यूरेसी। आपकी वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेड वैल्यू के कितना नजदीक है वो एक्यूरेसी के बारे में बताएगा। नाउ क्लोजनेस अमंग द मेजर्ड सेट ऑफ वैल्यू, closeness among the measured set of value, that is different one. What is that? measured set का क्या मीनिंग हुआ? आपने रीडिंग ली टाइट्रेशन की और आपके पास 5 और 6 रीडिंगें आ रही हैं। कितनी रीडिंगें आ रही हैं? 5 और 6 रीडिंगें आ रही हैं। उन 6 रीडिंगों के बीच में कितनी क्लोजनेस है? उन 6 रीडिंगों के बीच में कितनी क्लोजनेस है उसको बोलते हैं प्रिसीजन। हाउ मच इज द क्लोजनेस अमंग द मेजर्ड सेट ऑफ वैल्यू। आप एक ही रीडिंग जो है वो कितनी बार 4 रीडिंगें लेते हैं, उसके बाद क्या बोलते हो? कंकॉर्डेंट रीडिंग आ गई। तो उसके लिए आप जो है वो एक सेट ऑफ रीडिंग ले रहे हो, उन रीडिंग्स के सेट में कितनी क्लोजनेस है दैट इज द प्रिसीजन। आई विल गिव द एग्जांपल लेटर ऑन। व्हाट सी हियर, 2.45 is the one value, 2.34 is the measured value. So suppose this is the first one is the accepted value, second one is the measured value. How much accuracy is there? That is simply determined
it is 2.3 measured value divided by the accepted value multiplied by 100. So simply 95.5% you are sure or 95.5% you are accurate about the measurements. Now let us come to the precision again. So see here, that is the data. थोड़ा कम विजिबल है मेरे को लगता है आपको यहां से, लेकिन ये एक्सेप्टेड वैल्यू शो की हुई है यहां पर 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, ऑल दीज आर द एक्सेप्टेड वैल्यू. किसके लिए? एक टाइट्रेशन के लिए. ये एक स्टूडेंट का डेटा है, वो रीडिंग 10 है एग्जैक्ट या एक्सेप्टेड वैल्यू. एक वैल्यू 8.5, दूसरी 11.5, तीसरी 9.5, चौथी 10.5, उसके बाद 12 भी रीडिंग है उसकी और 8 भी रीडिंग है. तो 6 रीडिंग है उसने ले रखी है, उसके पास ये रीडिंग आ रही है. एक स्टूडेंट 2 का डेटा है, उसकी रीडिंग है इतनी ज्यादा वेरी नहीं कर रही है, लेकिन 9.4, 9.5, 9.3, 9.4, 9.5, 9.3. तो क्या कहता है वो प्रिसीजन के लिए? हाउ मच क्लोजनेस इज देयर इन द डेटा विच इज बीइंग मेजर्ड. एक सेट आपने लिया है रीडिंग्स का, और उन रीडिंग्स के सेट में कितनी क्लोजनेस है. दीज आर क्वाइट क्लोज. 9.54 जो है 9.5 के क्लोज है, या 9.3 जो है 9.4 के क्लोज है. सो ऑल दीज वैल्यूज आर क्लोज वैल्यूज. सो वी विल से दैट इज ए प्रिसाइज डेटा. दैट इज ए प्रिसाइज डेटा. बट अबाउट दिस डेटा, इनमें रीडिंग्स में बहुत ज्यादा फर्क है. पहली 8.5 है, दूसरी 11.5 है, तीसरी 9.5 है. तो आपस में क्लोज नहीं है वैल्यू. देर इज मच मोर वेरिएशन. एक वैल्यू 8 है, दूसरी 12 है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट का डिफरेंस है, 4 यूनिट का. सो देर इज नो क्लोजनेस अमाउंट द स्टूडेंट 1 डेटा, बट देर इज मच मोर क्लोजनेस अमाउंट इन द डेटा दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द सेकेंड स्टूडेंट. तो सेकेंड स्टूडेंट का जो डेटा है दैट इज द प्रिसाइज डेटा, और पहले स्टूडेंट का डेटा जो है वो प्रिसाइज नहीं है. लेट अस सी अबाउट द एक्यूरेसी. मैंने कंकॉर्डेंट रीडिंग निकालनी थी, तो कंकॉर्डेंट रीडिंग या मीन वैल्यू कैसे निकालनी है? मैंने सारी वैल्यू जो है पहले स्टूडेंट की ऐड कर दी, और 6 सेट था, 6 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया. यू सी हियर 60 डिवाइडेड बाय 10, ही इज गेटिंग द एग्जैक्ट रीडिंग. स्टूडेंट 1 का डेटा सही नहीं था. सही नहीं बोलोगे आप उसको, प्रिसाइज नहीं था. प्रिसीजन क्या होता है कि जो आपने वैल्यूज मेजर की हैं उनमें क्लोजनेस होनी चाहिए, लेकिन उसका डेटा प्रिसाइज नहीं है, और स्टूडेंट उसकी जो मीन वैल्यू आ रही है वो ऐड करने के बाद कितनी आ रही है? 10. तो जो आपने डेटा लिया है उसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो प्रिसाइज नहीं है तो एक्यूरेट नहीं हो सकता है. योर डेटा इज नॉट प्रिसाइज बट इट मे गिव द एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि आपके पास जो एरर आ रही है दे आर इन द प्लस माइनस. प्लस माइनस का मतलब 10 थी वैल्यू एक्सेप्टेड, वैल्यू कितनी आई? 8.5. सो यू आर हैविंग ए नेगेटिव एरर हियर. आपके पास कम मेजरमेंट हो रही है. सेकंड में 10 वैल्यू है, लेकिन आप एक्सेस मेजर कर रहे हो 11.5, तो इसमें आपके पास पॉजिटिव एरर है, ऊपर आपके पास नेगेटिव एरर है. जब नेगेटिव और पॉजिटिव एरर आपस में ऐड होंगी तो वो कैंसिल आउट होती जाएंगी. क्या होती जाएंगी? कैंसिल आउट. इसीलिए मल्टीपल ऑफ आपको मेजरमेंट्स के लिए बोला जाता है कि आपने एक रीडिंग नहीं लेनी है, कम से कम 4 रीडिंग लेनी है, और उसके बाद उसका क्या निकालना है? मीन वैल्यू जो वो डिटरमिन करनी है. सो दैट इज द डेटा ऑफ 1 स्टूडेंट, दैट इज द डेटा ऑफ द अनदर स्टूडेंट. अगर यही मीन वैल्यू मैं दूसरे स्टूडेंट के लिए कैलकुलेट करूं यहां पर, सो सी हियर 9.5, 9.4, 9.3 को अगर मैं इसी तरह से करता हूं, आई गेट द 9.4. तो सेकंड स्टूडेंट की वैल्यू जो वो 9.4 रही, और पहले की स्टूडेंट की जो मीन वैल्यू वो 10 बिल्कुल एग्जैक्ट तक पहुंच गई. तो डेटा प्रिसाइज होने का ये मतलब नहीं है कि उसके पास एक्यूरेट वैल्यू है. डेटा प्रिसाइज होने का ये मतलब नहीं कि उसके पास एक्यूरेट वैल्यू है. और पहले स्टूडेंट के पास डेटा एक्यूरेट नहीं था, लेकिन उसके पास फिर भी वैल्यू जो एक्सेप्टेड वैल्यू के काफी क्लोज आ रही है. सो बट आई वांट टू से ए प्रिसाइज डेटा मे एंड मे नॉट बी एक्यूरेट. एक प्रिसाइज डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन जो प्रिसाइज नहीं है दैट मे गिव द एक्यूरेट वैल्यू. अब आती है बात कि किस स्टूडेंट की रीडिंग सही है और किस स्टूडेंट की रीडिंग गलत है. Now again I will say second data is not accurate but precise one. So second data is the good data. क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट मेजर कर रहा है उसकी वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है.
ही इज गिविंग द नियरली सेम वैल्यू बाय ईच एंड एवरी रेपिटेशन, हर एक रेपिटेशन से वो सेम वैल्यू को शो कर रहा है। पहले वाले स्टूडेंट का डेटा बेशक 10 रीडिंग दे रहा है, लेकिन डेटा गलत है। अगर आप डेटा रिपोर्ट करोगे, रिपोर्टिंग द डेटा, पहले स्टूडेंट का डेटे को क्रॉस लग जाएगा, गलत है, और सेकंड डेटे को यस लगेगा। बेशक वो डेटा सही, बिल्कुल एक्यूरेट एक्सेप्टेड वैल्यू के क्लोज नहीं है। वाई दैट इज नॉट एक्यूरेट? ही मे बी डूइंग ए सिंपल कांस्टेंट एरर, हर एक में एक ही तरह की एरर आ रही है। वो उसके मेजरमेंट में भी हो सकती है, वो उसके इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकती है, वो उसके मेथड में भी हो सकती है। ये डिटेल्ड डिस्कशन है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट पोर्शन में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी फर्दर हियर, अगेन कमिंग टू द सेम प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी। सो how much agreement between the true value means accepted value, and the measured value or measured value, तो उसको बोलेंगे हम एक्यूरेसी। जो आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है, उसमें कितना की एग्रीमेंट है, कितनी की क्लोज है, दैट इज द एक्यूरेसी। देन सेकेंड लाइन, हाउ मच एग्रीमेंट इज देयर बिटवीन ए सेट ऑफ मेजर्ड वैल्यू, आपने 6 रीडिंग ली हैं, उनमें आपस में कितनी क्लोजनेस है, कितना एग्रीमेंट है, दैट इज द प्रिसीजन, दैट इज द प्रिसीजन। देन कई बार जो वो 2 वर्ड और रिपीट यूज होते हैं प्रिसीजन के लिए, वन इज रिपीटेबिलिटी, अनदर इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब ये वर्ड क्या है? रिपीटेबिलिटी मीन्स आप रिपीट कर रहे हो, रिप्रोड्यूस, आप जो रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो वैसे तो दोनों में जो वो क्या हो रहा है, एक ही सेंस आ रही है, दैट एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को आप बार बार रिपीट कर रहे हो और वैल्यू निकाल रहे हो। मीन्स 4 रीडिंग लेना एक टाइट्रेशन की, दैट इज द रिपीटेबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी आ रही है, लेकिन दोनों में थोड़ा जो है वो डिफरेंस है। रिपीटेबिलिटी क्या होती है? रिपीटेबिलिटी को बोलते हैं हम कि एक ही स्टूडेंट है, वो एक ही एक्सपेरिमेंट को एक ही टाइम पे कर रहा है, एक ही मेथड से कर रहा है, और उसकी कम से कम 5-6 रीडिंगें ले रहा है, तो उसको बोलेंगे हम रिपीटेबिलिटी। यानी आपका 12 से 2 बुधवार को मान लो एक्सपेरिमेंट था, और कोई स्टूडेंट, मनोज नाम का स्टूडेंट जो वो एक टाइट्रेशन कर रहा है, वो उसी टाइट्रेशन को उसी ब्यूरेट से, उसी पीपट से, उसी इंस्ट्रूमेंट से, उसी टाइम पर अगर 6 बार रिपीट करता है, दैट इज द रिपीटेबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे? रिपीटेबिलिटी। नाउ व्हाट इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी? रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी वही है, लेकिन वही एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट ने किया, डिफरेंट टाइम पे किया। एक ने आज किया, एक हफ्ते बाद कर रहा है, एक महीने बाद कर रहा है, ठीक है? तो उसको जो बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यानी जब टाइम लैब के हिसाब से आप उसको और नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से उसको डिवाइड कर दोगे एक ही एक्सपेरिमेंट को, दैट इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। एंड रिपीटेबिलिटी मीन्स वन स्टूडेंट, वन ऑपरेटर, सेम मेथड, सेम टाइम मेजरमेंट, दैट इज द रिपीटेबिलिटी। देन नेक्स्ट वन, प्रिसीजन, व्हाट इज इट? इट इज मेजर्ड एज द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द सेट ऑफ द रिजल्ट वैल्यूज एंड इंडिविजुअल वैल्यू। प्रिसीजन को क्या बोलेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने 6 रीडिंगें ले ली, मैं एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाता हूं आज को नेक्स्ट पेज पे जो है कि इसको किस तरह से जो वो लिया जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज हैं जो पहले एक स्टूडेंट ने प्रिसाइज डेटा लिया था 9.5, 9.4, 9.3, 9.4, 9.5 और 9.3। आपने इसकी मीन वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? मीन वैल्यू। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? सबको ऐड करना और जितने नंबर हैं 6 हैं रीडिंग्स, तो 6 से डिवाइड कर दो, उसके पास आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी उसकी। उसी को क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू। तो अब मैं इसको जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सपोज x1, x2, x3, x4, x5 और x6 जो ये वैल्यूज थी, और मीन वैल्यूज मेरे पास आती है, उसको आप x बार से भी डिनोट कर सकते हो या xm लिखते हो। तो पहली वैल्यू xm से कितना डेविएट कर रही है? x1 माइनस xm, x2 माइनस xm एंड सो ऑन। दीज आर द डेविएशंस फ्रॉम द मीन वैल्यू। इन डेविएशंस को हम यूज करते हैं प्रिसीजन को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? प्रिसीजन को मेजर करने के लिए। फर्स्ट मेथड आता है प्रिसीजन को मेजर करने के लिए एवरेज डेविएशन।
जितनी भी डेविएशन हुई सबकी एवरेज निकाल दो। एवरेज मीन्स एड देम मॉडुलस लेकर के, मोड लेकर के, प्लस माइनस में नहीं रखना है। सभी वैल्यू जो वो प्लस में आनी चाहिए। तो माइनस में आई है वो वैल्यू भी प्लस में हो जाएंगी। तो टेक मोड ऑफ ऑल एंड देन डिवाइड इट बाय टोटल नंबर ऑफ द मेजरमेंट्स। कितनी है नंबर ऑफ मेजरमेंट? 6। और ये भी डेविएशन कितनी होगी आपके पास? 6। तो 6 मेजरमेंट्स जो हैं, ये 6 डेविएशंस का मोड प्लस करके और डिवाइडेड बाय द एवरेज नंबर जो उससे जो आपने डिवाइड कर दें, दैट इज द एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन और द मीन डेविएशन, तो मैथमेटिक्स के तौर पर हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज द समेशन ऑफ ऑल डेविएशंस डिवाइडेड बाय द एन वैल्यू, दैट इज द एवरेज डेविएशन। एक और यहां पर डिफाइन किया उसने फैक्टर, एवरेज डेविएशन ऑफ मीन। ये डिफरेंट है, पहले वाला डिफरेंट है। हर एक जो प्रिसीजन की मेजरमेंट से है इसमें समेशन है, ऊपर क्या है? एक्स आई माइनस एक्स एम, दैट इज द जनरल टर्म फॉर द डेविएशन, डिवाइडेड बाय एन, इट मीन्स इट इज एवरेज डेविएशन। देन यू आर डिवाइडिंग इट बाय अंडर रूट एन। किससे डिवाइड कर रहे हो आप इसको? अंडर रूट एन से जो वो डिवाइड कर रहे हो। सो दैट इज द एवरेज डेविएशन ऑफ द मीन। सो ऑल दीज आर द मैथमेटिकल पैरामीटर्स, यू हैव टू लर्न देम। और इसके बाद आप रिलेटिव एवरेज डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। रिलेटिव एवरेज डेविएशन का मतलब है कि आपके पास एवरेज डेविएशन तो निकल गया, उसके आप किसी से रिलेटिव, किससे रिलेटिव? मीन वैल्यू के रिलेटिव अगर आपने देखना चाहते हो कि कितनी डेविएशन है, तो दैट इज द अबव टर्म एवरेज डेविएशन। I have divided it by the mean value and multiplied it by the 100. That is the relative average deviation in the percentage. Sometime we also report the standard deviations instead of the mean deviation. क्या रिपोर्ट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसमें इंडिविजुअल डेविएशंस का स्क्वायर करना है, उसको n से डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है उसका। क्या लेना है? उसका स्क्वायर रूट। और जर्नल टर्म कैन बी रिटन फॉर दिस। लेकिन यहां पर जो नीचे मैंने टर्म लिखी उसमें एक में n लिखा, एक में n-1 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? एक में n-1। वाई आई एम राइटिंग इट एज n-1? जब आपके पास नंबर ऑफ मेजरमेंट्स 20, 30, 40 और 50 हैं, दे आर लार्जर इन नंबर, इट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय n। लेकिन जब आपके पास मेजरमेंट्स कम है, मान लो 5 ही मेजरमेंट्स की हैं, व्हेन n वैल्यू इज वेरी लेस, तो आपने उसमें से एक लेस कर देना है। क्या कर देना है? एक उसमें से लेस कर देना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वो डेफिनेशन या फार्मूला चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ द n, वेदर लार्जर इट इज सिंपली n, इफ इट इज स्मॉलर इन नंबर देन इट इज n-1। रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस लेटर ऑन।